दिल ते मेरा भी करदा कि मैं अपने एरिया दा चंगा तरनट बदमाश होवां। कुर्ते ते बीड़े खुले होण इंज मैं आकड़ के टुरा, सट मार के बंदा कदमी सट लवां। पर की करा कुड़ी अभी सेहत नहीं मेरा साथ देंदी। मैं ते इस गल्लों बड़ा परेशान हां। डॉक्टर साहब देख ला सट लग गई आ। सट लगन तो बाद तो कुछ लाया जी की लाया व्हाट्सएप स्टेटस। ਸ਼ਾਨੀ ਇੰਨੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖੋਂ ਮਕਾਨ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਗਟਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता है और दूसरे का रोए तो सर में, अपनी बीवी रोए तो सर में दर्द होता है और दूसरे की बीवी रोए तो दिल में, ये क्या वजह है? ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕ ਬਿਲਕ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ। ਤੀਲਾ ਭੰਨ ਕੇ ਕਦੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੂਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਅਗਸਤ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ। ਰੱਬ ਸੋਨੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਠਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਜਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਨੇ ਕੋ ਦੁਆ ਮੰਗਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਜਰਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇਗੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਰਸ਼ਕੇ ਵਾਲਾ ਹਾਰਨ ਤੇ ਹਾਰਨ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਨੀ ਕੋਸਰੀ ਨੀ ਉਤਰੀਏ ਨੀ ਰਸ਼ਕੇ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਨੀ ਹਾਰਨ ਤੇ ਹਾਰਨ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਖੇਖਣ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਦੇ। ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣੀ ਬਾਜੀ, ਆਉਂਦਾ ਕਿਦਾਂ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ, ਵੇਖ ਸਹੀ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਆਪਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖੜੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਕਾਂ ਚਲੀ ਨੀ ਕੀ ਗਈ ਨੇ ਕੀ ਗਈ ਵੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਨੀ ਬਾਜੀ ਨੀ ਬਾਜੀ ਨੀ ਉਤਰੀਏ ਇਹ ਕਿਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਨੀ ਲੰਗੜੇ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਕਿੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਨੀ ਨੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਕਲੋਂ ਠਰਕੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆਪਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ 250 ਦੀ ਭੁੰਡੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ 200 ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦਾ। ਵੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਇਹ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਅੱਜ ਆਇਆ ਹੀ। ਵੇ ਜਾਣਾ ਸੁਮਤਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਤੇ ਉਮਤਰਾ 250 ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਦਾ ਵਾ, ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ 150 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਵੇ ਗਾਈ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜੀਏ ਕਰਾਲੇ। ਉਮਤਰਾ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਲੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਰਸ਼ਕਾ ਰਾਹ ਚ ਠੋਕਿਆ ਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਚਾਰ ਨਿਆਣੇ। ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਬੁੱਢੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਕਰਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੀ ਉਧਰ, ਵੇਖ ਕੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਕਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਕਲੋਂ ਹੀ ਠਰਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਬਾਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰ। ਤੂੰ ਹੀ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਕਾਲ ਵੇਖ ਵੇ ਉਮਤਰੀ ਲੰਗੜਿਆ ਮੰਗੜਿਆ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕਿਥੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਖਾਲਦ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਦਾ ਵਾਜਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। एक शरारती बच्चा एक औरत को गोरते हुए जा रहा था। औरत बोली, क्या है, तेरी माँ की उम्र की हूँ। बच्चा बोला, तो मैं भी अबू के लिए ढूंढ रहा हूँ। जुमे वाले दिन व्हाट्सएप भी सोचता होगा कि मुझे पूरा हफ्ता ख्वार करके जुमे वाले दिन हाजी बना लेते हैं। बड़े अफसोस की बात है, आज तक जब मैंने क्लास 9 की किताब खोली तो कौवा अभी तक प्यासा है। लड़कियां मगरिब की नमाज इसलिए लंबी कर देती हैं कि पीछे से अफ्तारी की बर्तन कोई और समेट ले। अभी तक दुनिया में सिर्फ 3 लोग कवारे हैं, मैं, सलमान खान और शेख रशीद। जब रियाजी वाला उस्ताद कहता था कि लेट सपोज, हमें वही समझ आ जाता था कि ये सवाल हमारी समझ से बाहर है। मस्जिद इस तरह वीडियो के लिए हमारा अकाउंट जरूर फॉलो करें। सिम वाले दफ्तर चो गल कर रहे हो?
हाँ जी मैं अनलिमिटेड वाला पैक ही लवाया सी ते ओ सिम ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੱਝ ਖਾ ਗਈ ਏ ਤੇ ਫੇਰ ਹੁਣ ਤੇ ਹੁਣ ਅਨਲਿमिटेड ਗੋਆ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇਂਦੀ ਪਈ ਏ ਦੁੱਧ ਆਣ ਦਿਓ ਗੋਏ ਵਾਲੀ ਸਰਵਿਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ दो पागल पेड़ से लटके हुए थे। पहला पागल बोला, यार सब हमें पागल क्यों कहते हैं? दूसरा पागल बोला, अरे यार छोड़ ना, ये ले टमाटर और रूह अफ़ज़ा बना। एक लड़की ने रंग गोरा करने वाली क्रीम खरीदी। एक हफ्ते बाद जब शादी पे गई तो पास बैठी औरत ने पूछा, बेटी क्या इस्तेमाल करती हो चेहरे पर जो तुम इतनी खूबसूरत हो? लड़की, बस 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूं। औरत, बेटा नफल भी पढ़ा कर ताकि पांव और हाथ भी सफेद हो जाएं। एक बेवकूफ बर्फ के टुकड़े को हाथ में लेकर बहुत गौर से देख रहा था। दूसरे बेवकूफ ने उससे पूछा, तुम इतने गौर से क्या देख रहे हो? पहला बेवकूफ बोला, मैं ये देख रहा हूं कि ये बर्फ लीक कहां से हो रही है। टीचर, तुम देर से क्यों आए? पापू, अम्मी अबू लड़ रहे थे इसलिए लेट हो गया। टीचर, वो लड़ रहे थे तो तुम देर से क्यों आए? मेरा एक जूता अम्मी के पास था और दूसरा अबू के पास। कैसे होता? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਤੀ ਅਸੀਂ ਬਾਜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੂਤੀਆਂ ਵਜਾਵਾਂਗੇ। कभी कभी मेरा हाल चाल भी पूछ लिया करो। मैं कौन सा तुम्हारे घर चाय पीने आ जाऊंगी। एक पठान कब्रिस्तान में खड़ा नशे वाली सिगरेट पी रहा था। अचानक वहां पुलिस आ गई। पठान ने घबराकर फौरन सिगरेट नीचे फेंक दी और पांव से बुझा दी। पुलिस वाले ने पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? पठान बोला, दादाजी की कब्र पर दुआ करने आया था। पुलिस वाला कब्र की तरफ देखकर बोला, लेकिन ये तो किसी छोटे बच्चे की कब्र है। पठान फौरन बोला, वो असल में दादाजी बचपन में ही वफात पा गए थे। एक नशेड़ी राणा ने अपने दोस्तों को दावत पे बुलाया। रात को अपने ही घर से बकरी चोरी की और दावत के खूब मजे उड़ाए। राणा जब सुबह उठा तो बकरी घर में ही थी। राणे ने अपनी बीवी से पूछा, ये बकरी कहाँ से आई? बीवी बोली, बकरी को गोली मारो, रात से कुत्ता गायब है। एक पठान का सर फट गया। पठान डॉक्टर के पास गया और बोला, मुझे मरहम पट्टी करवानी है। डॉक्टर बोला, ये कैसे हुआ? पठान बोला, हम चप्पल से दीवार में कील ठोंक रहा था। एक खाबीज का बच्चा बोला, पठान साहब दिमाग का इस्तेमाल करो। एक पठान सारा दिन अपना निकाहनामा उल्टा सीधा करके देख रहा था। आखिर उसकी बीवी ने तंग आकर पूछा, खां साहब आप क्या कर रहे हैं? पठान बोला, मैं इसकी एक्सपायरी डेट ढूंढ रहा हूं, कम वक्त मिल ही नहीं रही। शेख साहब के कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने उनके घर आए। बीवी ने शेख साहब को किचन में बुलाकर बताया कि घर में चीनी नहीं है। शेख साहब ने बीवी से कहा, पत्ती और दूध हमेशा की तरह कम और पानी ज्यादा डालकर चाय बनाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। बीवी ने मेहमानों को चाय पेश की तो शेख साहब ने कहा, इनमें से एक कप में चीनी नहीं है, वो कप जिसके हिस्से में आएगा
हम कल बीवी बच्चों के साथ उसके घर मेहमान होंगे। सब रिश्तेदारों ने बिल्कुल खामोशी से चाय पी ली। एक ने तो ये भी कहा, मेरे कप में तो चैनी ज्यादा है। एक बादशाह ने ऐलान किया, शादीशुदा मर्द 2 लाइनों में खड़े हो जाएं। एक लाइन में बीवी से डरने वाले और दूसरी लाइन में न डरने वाले। डरने वालों की लंबी लाइन थी और न डरने वालों की लाइन में सिर्फ एक आदमी। बादशाह ने पूछा, तुम बीवी से नहीं डरते? वो बोला, पता नहीं जी, बीवी ने कहा है उसी लाइन में खड़े रहना, वरना टांगे तोड़ दूंगी। पति पत्नी से बोला, प्रिय मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी पत्नी बोली, तो क्या मैं आपको नहीं करती? मैं तो आपके लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। फिर पति बोला, लेकिन तुम तो दिन रात मुझसे ही लड़ती रहती हो। फिर पत्नी ने कहा, जानू आप ही तो मेरी दुनिया हो। पठान ने सरकारी जमीन पर गैर कानूनी दीवार बनाई। किसी ने उसे मशूरा दिया कि कुछ ऐसा करो कि दीवार पुरानी लगे। पठान ने दीवार पर लिख दिया कि हम कायद आजम को पेशावर आने पर खुश आमदीद कहते हैं। एक शागिर्द ने दरिया में अपने उस्ताद को डूबते हुए देखा तो चलाता हुआ मदरसे की तरफ भागा। कल छुट्टी है, कल छुट्टी है। एक मौलवी के हाथ से कौवा गोश्त छीन कर ले गया। मौलवी ने कुएं को आवाज दी, गोश्त वापस कर वरना लाउड स्पीकर बे ऐलान कर दूंगा, कौवा हलाल है। मुर्गा मुर्गी से बोला, आई लव यू जान, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुर्गी बोली, सच्ची में? चाहे कुछ भी हो? मुर्गा बोला, हाँ चाहे कुछ भी हो। मुर्गी बोली, चलो फिर आज मेरे बदले आप अंडे दो। बाप, जब कोई बच्चा शरारत करता है तो बाप का एक बाल सफेद हो जाता है। बेटा अब पता चला दादा जान के सारे बाल सफेद क्यों हैं? पठान ने एक दिन यूनिवर्सिटी में एक चमकती हुई वेंडिंग मशीन देखी। इस पर लिखा था, प्रेस बटन फॉर जूस। पठान ने फौरन बटन दबाया तो ताज़ा जूस निकला। पठान मुस्कुरा के बोला, टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस्ड हो गई है, एक बटन और जूस हाजिर। पठान ने फिर बटन दबाया, एक और जूस आया। पठान बोला, ये मशीन तो डबल स्पीड पर काम कर रही है। पठान ने बार बार बटन दबाकर जूस कैंस का ढेर लगा दिया। पठान का दोस्त आया और बोला, इतना जूस किसके लिए? पठान बोला, चेक कर रहा हूँ ये मशीन कब तक काम करेगी। दोस्त हंस के बोला, मशीन का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे टेबल की जगह क्लास में जरूर खत्म हो जाएगी। और अभी तो रुको। एक दिन पठान भाई की गाय चोरी हो गई। पठान भाई को बहुत गुस्सा आया और बोला, इस चोर की तो खैर नहीं। पठान भाई ने फौरन अपने मुलाजिम को जगाया। पठान बोला, थानेदार से कहना रात का वक्त था, तारे चमक रहे थे, कुत्ते भूंक रहे थे, एक चोर दीवार फलांग के आया और गाय ले गया। मुलाजिम नींद में भागते भागते पुलिस स्टेशन पहुंचा और थानेदार से बोला, जनाब सुबह का वक्त था, कुत्ते चमक रहे थे, तारे भूंक रहे थे, चोर आया, गाय दीवार फलांगी, चोर दीवार को ले गया।